training input ये था enormous amount of data. Okay, so you will feed this input into the learning algorithm, and based on the learning algorithm will give us the model. And and after we get the model, then for the new input we'll pass the new input into the model, and then it will give us the output. So understanding in the surface view, you have the Google data, that is the training input, and you will pass that training input inside the learning algorithm, and the learning algorithm will give the model. And now the user input will be like what you want to translate, and this is the text form, right? So the output and the model is your knowledge. So the model is the knowledge that it knows about like what you want to predict, like knowledge base or the pattern recognition. So you have what you want to translate, and the output will be आप क्या अनुवाद करना चाहते हैं. So you got the point, right? कि Google data is the enormous amount of data. You will train the data. Based on that training, you'll get the model, and after you get the model, you'll pass the new input into that model, and the model will give the output. The recognizing the pattern, it will give the output. Okay. Now moving on to the neural network. I like to before moving on to the neural network, basically the most of the people like they try to define the neural network and our brain neurons at the same time. So I like to do the same thing over here also. Like our brain is made up of billions of neurons, and these things communicate with each other, like process information, and that's how we become intelligent. Like it took thousands and thousands of years of evolution and such amazing prizes. Okay, so like these neurons, they pass the information between them, they process the information, and through the evolution we become more and more intelligent, right? Through the experience. This is what got the learning from the experience. So times thought what happened if we like actually turn that and put into the computer. Okay, so moving further, let's understand the difference between the artificial neuron and the biological neuron. So in the left hand side, this is the artificial neuron, and then right hand side, this is the sorry, in the left hand side, this is the biological neuron, and the right hand side, this is the artificial neuron. Okay, so these dendrites and the cell bodies, axons, this part take the information and process them and give you some output. So similarly on the right hand side we have the this thing artificial neuron, and we have bunch of x. The x is our input, and the fx is our mathematical calculation, and y is our output. Okay, so this picture over here will represent the basic relation between the neurons. Okay, since we have many of them, and altering the relation between the neurons, which are called the synapses, we'll be able to learn and gain the better understanding of the things. And synapses are like in the picture, the synapses are represented by the line. So what I'm trying to convey over here is you'll calculate the value in each and every activation layer. So these layers are called activation layer, or like activation layer, and you calculate you calculate the information in each and every activation layer, and you pass that information to the further activation layer or the further neurons. That's how you calculate. That's how you take the information from the that's how you calculate the information, and that's how you pass the information through the activation layer, throughout that activation layer, and you'll get the output. Same happens in the human brain as well. So you pass the information from the neurons to neurons through synapse, right? So like deep learning is try to mimic the human brain. Okay, so back in the old day, you know that in 1970s or before, when scientists wanted to do something like image recognition or speech recognition, what they had to do is they had to sit around the table, and you know that they have to put the paper and pens and start doing the math. They even had to create a lookup table. Okay, they even have to create the lookup table, and this was a very much painful because it takes a lot of manpower and it takes a lot of time. So scientists thought, what if we give the computer its own power to learn? That would be magical, right? So because the lookup tables would never exist, and we can just make the computers learn it on its own, and we have the computers its own knowledge base about specific subjects and the domain.
So that's what the scientists thought. And this is what the knowledge of the computer is. This represents the knowledge of the computer, and something that is really empowering, because scientists no longer have to create the lookup tables. What they have to do is just write a simple program, train the computer, and then they can do the things like image recognition, speech recognition in a matter of seconds. Okay, so I like to show you the demo video, like how the image, like about the object detections and the language translations. So this project is done by me and my colleague for our minor project. Okay, what is, okay, I'm sorry about this. Let me check this project. Is this video visible? Yes, sir. Okay, so this is the project done by me and my colleague for the minor project. Okay. Okay, so I hope you like the video. So, like as you can see, using the machine learning and the artificial intelligence and the basically the natural language processing, we made such an amazing like app that can that can recognize the object, and based on the recognition, you can translate that name into the any desirable language, right? So, can you imagine this object recognition without convolution neural network?
I mean like deep learning. So if you sit and start coding this thing, you will suddenly realize that you have to write the code for every single picture explicitly. So suppose you wrote the code that can recognize the standing elephant, but if I fed the input as a sleeping elephant, so your program will not recognize the elephants this time. Again, you have to write the code for sleeping elephant as well. So how tedious it is. So because of this, we left the traditional method, and we came up with the machine learning and AI. So this is the base. This is where the AI and machine learning come into the picture. So why do we need AI and machine learning? And so all of these things, uh, okay, so all of these things we talked about are just intangible, like art, music, and language, and all of that. But technology is like that, playing such an important role in our daily lives. Okay, so any question till here? Any questions in the machine learning and artificial intelligence? So did you get the point about machine learning, artificial intelligence? Can I move further, or you have any queries? Then you can ask me. सर जैसे ये Mm-hmm. आपकी ऐप थी, Mm-hmm. इसके अंदर वो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर था अपना, Mm-hmm. उसमें हम गूगल ट्रांसलेटर को भी यूज कर सकते हैं। लाइक हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं गूगल हाँ हाँ, ट्रांसलेटर से, वो एग्जैक्टली ट्रांसलेट एग्जैक्टली। होके आ रही पर है। वो फिर वो मतलब हमने रिसर्च किया था ना उसमें, तो फिर गूगल करने का कुछ फायदा नहीं था उसमें। तो जैसे वो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन तो हमने क्या किया था, योलो यूज किया था, है ना। तो क्योंकि उसके लिए मेरे पास मतलब हमने सोचा था कि 5-6 डेटा लेंगे, मतलब पिक्चर्स वगैरह गूगल में मिल जाएँगे। तो 5-6 के लिए तो ट्रेन करके हम खुद का करा सकते हैं। पर फिर मेरे दोस्त ने बोला, फिर 5-6 में क्या ही वो अच्छा अच्छा होगा नहीं, 5-6 क्या ही रिकॉग्नाइज़ करेंगे। तो फिर हमने क्या किया, योलो यूज़ किया, उसमें 80 इमेजेस, 80 मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज़ कर रखा है। सो देन वी यूज़ द योलो फॉर दैट, एंड फॉर द लैंग्वेज ट्रांसलेशन उसमें उसमें फिर हमने टाइम मतलब ज़्यादा टाइम दिया, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बकवास रिजल्ट दे रहा था, एंड सो तो मतलब ये सारे वर्ड्स आपको सबसे पहले मैनुअली उसमें हाँ हाँ जी। वहां पे मतलब वो करे, जो सारे वर्ड्स हैं लैंग्वेज ट्रांसलेट करिए, पहले वहां पे अपने सारे मैनुअली इनपुट करे, उसके बाद वो आपको रिजल्ट दे रहा है। हाँ, मतलब हमने क्या किया था, एक बुक था, बुक को ट्रेन किया था मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए। ये तुम्हारा जब एनएलपी पढ़ोगे ना, तब इसमें ये सब चीज़ें आएँगे कि कैसे मतलब मशीन ट्रांसलेशन काम करता है, अटेंशन मॉडल, है ना, वर्ड एम्बेडिंग, तो ये सब चीज़ें इसमें आएँगे। तो काफ़ी चीज़ें मतलब कंसिडर करके मतलब होता है। हमने क्या किया था, बुक बुक लिया था, ऑनलाइन मिला था, मतलब 3 लैंग्वेज में ही किया था ना, ज़्यादा में किया नहीं था, मतलब नेपाली, हिंदी एंड पंजाबी को इंग्लिश में ऐसे करके किया था हमने। तो फिर इसकी बुक मिल गई हमको, एक बुक। तो हमने वो सारे बुक को ट्रेन कर दिया, मतलब जितने भी टेक्स्ट थे उसमें, तो ट्रेन करके फिर रिजल्ट आया था। तो मैनुअली डाले थे सारे वर्ड ना ना ना, कि मैनुअली जितना यार, ऐसे वर्ड। तो मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लगता, तभी तो बोला था ना, बुक हाँ ऑलरेडी था, तो उसमें टेक्स्ट थे ना। तो हमने क्या किया था कि बुक को ट्रेन करते टाइम हमने क्या किया था कि जैसे हर एक सेंटेंस के थ्रू मैं गो थ्रू कर रहा हूँ ना, तो मैं एक बैग ऑफ वर्ड लेके जाता हूँ, डिक्शनरी टाइप लेके जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मेरे को कोई भी यूनिक वर्ड दिखता है, तो मैं उसको डिक्शनरी में डाल देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब वो किया था, नहीं तो फिर मेरे मेरे पास एक डिक्शनरी तो होना था, नहीं तो फिर आगे प्रोसेस नहीं होगा ना। तो डिक्शनरी हमने क्या किया था, जो भी बुक था उसी के अंदर जो भी वर्ड थे ना, उसी से हमने डिक्शनरी निकाला था। तो ऐसे कोई मतलब गूगल का कोई डिक्शनरी यूज़ नहीं किया था उस टाइम पे। ओके सर। और सर टाइम कितना लग गया, मतलब स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे ओ जैसे? यार, 6 महीने लग गए थे पूरे के पूरे, मतलब यार ये तो मान लो यार, सबसे ज़्यादा मुश्किल आई थी हमको इसी में, लैंग्वेज ट्रांसलेशन में यार। क्योंकि शुरू के 3 महीने तक तो पूरा रिसर्च चला, फिर उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट किया हमने, और उसके बाद रिजल्ट अच्छा आ ही नहीं रहा, मतलब बहुत ही बकवास रिजल्ट आ रहा है ना। तो फिर अभी भी उतना अच्छा रिजल्ट है नहीं ऐसे मतलब पर्टिकुलर किसी उसमें अच्छा रिजल्ट आता है। तो फिर टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। इसका मतलब एनएलपी में ना सबसे ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे आती है कि तुम एरर, कितना एरर है वो प्रिडिक्ट करने में भी 3 घंटा लग गया था, मतलब वो नहीं होता इसमें, बीएलयू स्कोर करके होता है। तो जैसे वो प्रिसीजन और वो नहीं होता है, मतलब होता तो है, पर बीएलयू स्कोर सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, पर उसी के लिए मेरे को 3 घंटा लग गया था हमको, मतलब ये फाइंड करने के लिए कितना अच्छा चल रहा है मेरा वो मॉडल, उसी में 3 घंटा लग गया था।
अच्छा। टाइम लगता है, मतलब रिसर्च करना है, मतलब बेसिकली क्या है कि मैं क्या बोलता हूँ कि ए एंड एम एल बेसिकली मैथ है। अगर तुम लीनियर अलजेब्रा ये सब पढ़ोगे अच्छे से तो मशीन लर्निंग में तुमको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। और ये ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह है ना, डेरिवेटिव वगैरह ये सब अच्छे से पढ़ लेना, इसका कंसेप्ट अच्छे से ले लेना, है ना। तुम्हारे पास मतलब वो एक यूट्यूब में वीडियो भी है, थ्री ब्लू वन ब्राउन करके, उसकी वीडियो देख लेना, कंसेप्चुअल सारे क्लियर हो जाएंगे एंड देन यू कैन स्टार्ट की मशीन लर्निंग की बुक्स वगैरह। और फिर ये मुझे मैं बाद में रिसोर्सेस वगैरह फिर बताऊंगा ना। ठीक है, और किसी को ही? ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। ओके। अब हाँ हाँ, बताओ बताओ। अरे ओके सर। हाँ जी, ठीक है ठीक है। ठीक है, फिर okay then, types of machine learning. So there are other type also, but I'm not going to discuss other type now. So there are two types, we're going to talk about the supervised and unsupervised learning. And in the supervised in the supervised learning is like is the regression technique, like predict the continuous value output. So as you can see in the graph, so what the like supervised learning do is like you plot you have a bunch of data, and based on that data you plot the graph over here, and you find the best line that can like fit over the points. Okay, so for this point you have the straight line as well, and you have the curved line as well. But but instead of using the straight line, we'll use the curved line, because the curved line best fit the plot over here. And then after plotting the data, and after getting the line, then what we'll do for the new incoming data, like suppose you have the housing price and you have plotted a data for the whatever information you have previously, like for the size in feet square 500, you have certain housing price, and you plot that graph similarly, so on, right? And for the new data, like suppose 750, I want to predict the what will be the housing price of the housing price for the size 750. So what I'll do, I'll just I'll draw the line over the curved line, and I'll find the respective y-axis or the price of the house. You got the point? So this is what the supervised learning is. Okay, so I'm not going to like I'm not showing the formula, that the hypothesis and all. So this is the basic overview of the supervised learning. You got the point, right? So it's the same, like it is the same as fx is equals to mx plus c. And in the supervised learning we basically find the m and c. That's what we do. So we find the perfect m and c, and based on that perfect m and c we'll predict the value for the new incoming data. Okay. And moving on to the logistic regression. So this is the linear regression, and this is the logistic regression. All right. So logistic regression is a classification approach, like discrete value 0 1 or 0 1 2 3. And let's suppose you have the data for the breast cancer. Is it malignant or benign? So you have to predict whether it is malignant or benign, and then you plot the you plot the point based on the information you got previously. So I already told you that we need enormous amount of data in order to predict the output, right? So suppose you have the enormous amount of data of the breast cancer, and then you plot the graph, and based on this graph you find the point, you find the line, or you find this thing, hypothesis. So for this 0.5 is the hypothesis, and whatever the data that comes over the 0.5 are like benign, and whatever the data that come below the 0.5 are malignant. And so based on this information, can any of you tell me like why the linear regression doesn't work over here, why we use the logistic regression based on this data, based on this figure, whatever the plot is over here, based on this, can you explain why we are not using linear regression over here? बहुत ज्यादा, मतलब ग्राफ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है नहीं, एक्सपेंड हो जाती है। अगर 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 मान लो ये डेटा ठीक है, मतलब पिछले पिछली बार क्या क्या था डेटा, हमारे पास ये डेटा आते हैं ना, तो हमने ये क्या किया था कि मैंने बताया ना, लिनियर रिग्रेशन बेसिकली क्या है, एफ एक्स इज टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एम और सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। मतलब जो भी तुम्हारे पास डेटा होता है ना, बहुत सारे डेटाज,
उस डेटा को लेके मैं क्या करता हूँ, एक एक ऑप्टिमल क्या फाइंड करता हूँ, एमएनसी की वैल्यू फाइंड करता हूँ, ताकि ये क्या हो कि उसी डेटा, उसी पैटर्न के डेटा जो भी अगर आगे आएंगे तो उसके लिए बेस्ट मैच होगा वो एमएनसी। समझ रहे हो मेरी बात? तो मतलब ये ग्राफ तुम्हारे पास है, इस ग्राफ से तुमने क्या किया, एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको हम ट्रेन करते हैं, ठीक है। ये अब अगर बाद में मैंने कभी सुपरवाइज्ड लर्निंग की वर्कशॉप लगाया तो मैं बताऊंगा कैसे ट्रेन करना है। तो ट्रेन करने के बाद क्या होगा कि तुम्हारे पास एम और सी की वैल्यू आ जाएगी, बेस्ड ऑन दैट यू फाइंड दिस कर्व लाइन एज अ बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। तो तुमने क्या फाइंड किया, ये कर्व लाइन बेस्ट रिजल्ट है बेस्ड ऑन एम एन सी की वैल्यू, ठीक है। और अब फिर क्या करते हो तुम लोग, इस x, तुम्हारे पास x गिवन होता है, मतलब इनपुट गिवन होता है, तो तुम क्या करते हो उसी एम एक्स एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे वो x की वैल्यू पास करके, एम एन सी तो ऑलरेडी गिवन है, ऑप्टिमल तुमने फाइंड कर लिया ट्रेनिंग के बाद, तो फिर क्या करते हो y की वैल्यू प्रेडिक्ट करते हो। तो ऐसे काम करता है लीनियर रिग्रेशन। अब इसी में देखें तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन इस डेटा में क्यों काम नहीं करेगा। तो अगर तुमने माना कि मान लो ये जो यहाँ पे ना जीरो 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 से मैंने अगर एक लाइन खींचा ना यहाँ पे, ठीक है, अगर एक लाइन खींचा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ना, यहीं पे क्या होगा, मेरे ये जो माउस, अभी यार वो नहीं हो रहा ना, मैं वो नहीं कर पा रहा है ना, कुछ कर सकता हूँ, दिख रहा है मेरा माउस की जो ये सिंबल दिख रहा है, मतलब कैसे मैं लाइन आगे ले जा रहा हूँ, दिख रहा है? हाँ जी सर। हाँ, ठीक है। जैसे अगर ये माउस मैं 0-0 से लेके जाऊँगा ना सीधा ऐसे, मान लो ये मेरा बेस्ट था, तो क्या होगा, जो भी ये थे ना, ये देखो पहले इसको क्या था, बनाइन था, पर अभी ये क्या आ गया, अगर इस ग्राफ इसका मैं लूँगा तो क्या करूँगा, इसके उधर मैं क्या बोलूँगा, मतलब इस लाइन के जो भी अपर है वो बनाइन बोलूँगा, जो भी नीचे वो मैलिग्नेंट बोलूँगा। पर अगर इस लाइन ड्रॉ मैं करूँगा, लीनियर रिग्रेशन लगाऊँगा, तो क्या होगा, ये जो भी डेटा थे जो बनाइन थे वो किस में आ गए, मैलिग्नेंट में आ गए। तो ये लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे अच्छा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मतलब ये तूने हाइपोथेसिस फाइंड कर लिया कि 0.5 है हाइपोथेसिस, तो इसके बेसिस पे क्या करोगे तुम, अगर जो भी इससे ऊपर है वो सारे क्या है, बनाइन है, जो भी इसके नीचे वो सारे क्या है, मैलिग्नेंट है। तुम ऐसे करके प्रेडिक्ट करोगे, ठीक है। इसमें वो एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है, एक बार तुम देख लोगे तो ये भी सिंपल है। एंड देन ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इंटरेक्शन चाहिए, ठीक है मेरे को। सो टेल मी, ये दो तुम्हारे पास डेटाज है, ठीक है, ये ब्लैक वाला एक ब्लू वाला। सो मेरे को बताओ कि तुम अगर इन दोनों को वो करना चाहते हो, सेपरेट करना चाहते हो, तो तुम कैसे सेपरेट करोगे, मतलब कौन सी लाइन, कहाँ से लाइन खींचोगे ताकि ये सेपरेट हो जाए दो पॉइंट्स, कोई भी बता देना। सर भाई ओरिजिन से मतलब वो लीनियर ठीक है, रिग्रेशन वाली खींचने के लिए। ठीक है। सो तुम बेसिकली बोल रहे हो कि ये वाला करेंगे, है ना? हाँ जी। ठीक है, ओके फाइन। अभी के अभी के लिए मान लेते हैं ये, ठीक है। ओके, क्या है, ठीक है। बट अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं इसको, ठीक है। कि जैसे मान लो ये क्या होता है, जो ये नहीं है, जो लाइन यहाँ पे आ रहा है ना, ये क्या है कि इससे जो भी ऊपर वाली चीज़ है, एक हम एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं, जो भी इससे नीचे है वो दूसरी क्लास डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो क्लास को जो हम सेपरेट कर रहे हैं ना, इसी को बोलते, यही होता है जो एसबीएम जो भी काम करता है ना, ऐसे ही काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, क्लासेस को सेपरेट करता है, जो भी एक ग्रुप में आएंगे उसको एक जगह पे, जो भी दूसरे ग्रुप में आएंगे उसको दूसरी जगह पे, ऐसे करके एसबीएम क्या करता है, सेपरेट करता है। सो इट फाइंड्स द लाइन और द हाइपर प्लेन बोलते हैं जनरली हम, ठीक है। ये मल्टी डायमेंशन में काम करता है, ये मल्टी डायमेंशन क्यों है ये मैं फिर बताऊंगा आगे। सो ठीक है, ये एक हाइपर प्लेन, जो ये जो नहीं है लाइन, ये इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर प्लेन बोलेंगे। और ये जो हाइपर प्लेन होता है, ये इस पॉइंट की मतलब जो भी ये काला वाला डेटा नहीं है, ब्लैक डेटा, इसकी इसकी जो भी नियरेस्ट जो पॉइंट है, जो इस हाइपर प्लेन से है ना नियरेस्ट पॉइंट, और जो इसके नियरेस्ट पॉइंट है, इन दो, सॉरी कहाँ गए, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे क्या होएगा, तुम्हारा हाइपर प्लेन होगा। मतलब जो भी फर्स्ट ब्लैक डेटा है और जो भी फर्स्ट ब्लू डेटा है, उनसे इक्वल डिस्टेंस पे क्या आएगा, ये तुम्हारा हाइपर प्लेन आएगा हमेशा एसवीएम में, ठीक है। एंड हाइपर प्लेन ये मल्टी डायमेंशन में काम करता है, ठीक है, एसवीएम मल्टी डायमेंशन में काम करता है। अब मैं थोड़ा ट्रिकी करता हूँ, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कराता हूँ। अब बताओ इसको कैसे। डाउट था। हाँ हाँ, बताओ वो बताओ। हर एक पॉइंट्स, हर एक मतलब दोनों पर्टिकुलर जो साइड्स हैं उनके हर एक पॉइंट्स का वो होएगा, मतलब एक बार फिर से बता दो। मतलब देखो, ये एक क्लस्टर जैसे दिख रहा है ना, मतलब एक जगह पे ऐसे क्लास है एक, है ना, हाँ एक, जी हाँ जी हाँ और जी। एक दूसरा ये है, ठीक है। तुम एक जो हाइपरप्लेन होता है, तुम जैसे मैंने अभी तो बोल दिया कि ये हाइपरप्लेन यहाँ से है। जब तुम ट्रेनिंग करता हो ना, वो
स्टार्टिंग में मशीन को कुछ नहीं पता होता कि हाइपर प्लेन कहाँ पे डालना है, ये रैंडमली हाइपर प्लेन डालता जाएगा, ठीक है। जब जब ये इस पॉइंट पे आ जाएगा ना हाइपर प्लेन बनाते बनाते, ठीक है, इस पॉइंट में आने के बाद ये क्या करेगा, इससे जो भी ऊपर वाले जो चीज है ना पॉइंट्स, उनसे सबसे पास में जो पॉइंट है उससे डिस्टेंस निकालेगा, ठीक है। और जो इससे जो और जो नीचे वाला चीज है उसमें से सबसे पास वाला जो डेटा है, जो पॉइंट है, उसमें से डिस्टेंस निकालेगा। अगर दोनों इक्वल आ गए, है ना, और इसमें और भी पॉइंट्स होते हैं एसबीएम में, जो फिर ये मतलब वो ऑप्टिमल माना जाता है जो उस पॉइंट को। तो अगर मान लो अभी के लिए क्या मान लो, अगर इक्वल डिस्टेंस है तो हम उसको ऑप्टिमल मान रहे, ठीक है। तो इस वाले लाइन से भी क्या इक्वल डिस्टेंस पे, और इस ब्लू वाले लाइन से भी इक्वल डिस्टेंस पे, तो ये क्या बोलेगा, ठीक है, ये परफेक्ट हाइपरप्लेन है, ये परफेक्टली दो क्लासेस को सेपरेट कर रहा है, मतलब हमारे पॉइंट्स को सेपरेट कर रहा है। स्टार्टिंग में इसको ये नहीं पता होता कि ये ब्लैक वाला डेटा अलग क्लास का है, ये वाला डेटा अलग क्लास का है, इसको पहले पता नहीं होता, ये सारे को एक साथ लेकर जाएगा। बस ये क्या करेगा, हाइपरप्लेन रैंडमली बनाता जाएगा, उसके भी फॉर्मूलाज होते हैं, जब कर्नल्स तक जब कर्नल्स तक दोनों दोनों का इक्वल आता नहीं जाएगा, ये प्लेन बनता जाएगा। बनता जाएगा। इसमें और भी फैक्टर्स होते हैं, अगर तुम एसबीएम में, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैथ है यार एसबीएम में, ठीक है। तो इसमें कर्नल की चीज भी आएगी। तो मतलब ये बेसिक रूल मान लो, दो पॉइंट से अगर इक्वल आ गया तो वो हाइपरप्लेन मतलब परफेक्ट मैच हो गया वहां पे। और ये होना ही होना है, हमेशा होना है एसबीएम में। हाँ, हमेशा होना है, हर एक क्लास से इक्वल डिस्टेंस होना है वो हाइपरप्लेन को, ठीक है। कोई और डाउट? ठीक है, मैं आगे आगे अब फिर अब थोड़ा सा ट्रिकी कराते हैं। अब बताओ इसमें से क्या करोगे, मतलब अगर ये मैंने दे दिया तो कैसे सेपरेट करोगे लाइन को? कोई आइडिया? सर्कल। ओके, सर्कल, ठीक है। हाँ, अब ये देखो, जब लॉजिस्टिक था ना, तब हम ये सर्कुलर, ये मल्टी डायमेंशन में काम नहीं कर सकते थे। मतलब एसवीएम एसवीएम क्या करेगा, मल्टी डायमेंशन में काम करेगा। इवन दो ये यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाने चलेंगे ना, तो हम फंस जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन कभी काम ही नहीं करेगा। वो तो क्या करता है, बस एक पॉइंट ऐसे मतलब लाइन क्रिएट करना है उसका काम, बाकी कुछ नहीं है। तो बस यहाँ पे क्या होगा, एक सर्कुलर, जो अगर मैंने यहाँ से ऐसे करके सर्कुलर खींच लिया ना, तो ये क्या होगा, परफेक्ट मैच होगा, परफेक्ट हाइपरप्लेन होगा इन दोनों पॉइंट के लिए, इन दोनों क्लासेस के लिए। तो मैं क्या करूँगा, एक एक नया डायमेंशन ऐड करूँगा, जेड एक्सिस, ठीक है। मतलब वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अगर उसको कैलकुलेट करूँगा ना, तब जाके देख, हाइपरप्लेन था, मैंने उसको क्या किया, एक मल्टी डायमेंशन जो मैंने बोला था, मतलब देख टू टू मतलब 2D पे था। मैंने फिर बाद में क्या करा, एक और डायमेंशन ऐड कर दिया। उसके बाद एक और डायमेंशन ये मैंने क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लिया। अगर इस वैल्यू को हम प्लॉट करेंगे ना, तो ये ऐसे करके डेटा आएंगे, मतलब एक यहाँ से एक ऐसे पॉइंट आएगा जो इन दोनों को सेपरेट करेगा, ठीक है। पर अगर मैंने को इसी को डायमेंशन घटा के करना है, मतलब ओरिजिनल डायमेंशन में कराना है, तो क्या होगा, एक सर्कुलर जो भी सर्कुलर है हाइपरप्लेन, वो सबसे बेस्ट फिट रहेगा इसमें। सो ये होता है एसबीएम, मतलब एसबीएम ऐसे काम करता है, ठीक है। कोई डाउट इसमें एसबीएम में? ओके, ठीक है। एसबीएम तो समझ गए, मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्यों यूज नहीं करना, है ना। और फिर एसबीएम क्या काम करता है, हाइपर प्लेन कैसे होता है, ठीक है, ये समझ गए। ओके, नाउ अब ये अनसुपरवाइज लर्निंग के उसमें आता है, ये लास्ट होगा अनसुपरवाइज लर्निंग में, है ना। ये के मीन क्लस्टरिंग होता है। सो बेसिकली क्लस्टरिंग मतलब क्या है, कि हर एक मतलब एक क्लास का एक ग्रुप बनाना, ठीक है। जैसे देख रहे हो ना, ये मतलब ये एक ग्रुप है, और यहाँ पे भी देखोगे तो मतलब बहुत सारे और ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्लस्टरिंग क्या होता है, कि ग्रुपिंग द डेटा बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी पैटर्न, ठीक है, बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, ठीक है। एक सिमिलर पैटर्न लेंगे और बेस्ड ऑन डिस्टेंस हम एक ग्रुप करेंगे उसको। मेन चीज देखो, अनसुपरवाइज लर्निंग और सुपरवाइज लर्निंग में मेन डिफरेंस क्या था। सुपरवाइज लर्निंग में हमको क्या दे रखा था, वाई की वैल्यू, और जैसे सॉरी वो मैंने शायद बोलना भूल गया आगे, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। ओके ओके, जैसे ये जो है ना, ये जो हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, ये लीनियर रिग्रेशन में जो आता है, इसमें क्या है, तुमको जब ट्रेनिंग के टाइम आएगा ना, ट्रेनिंग के टाइम पे तुमको क्या दे रखा होगा, एक्स भी दे रखा होगा, ठीक है, जो पास डेटा है, जो मान लो मैं एक उसमें काम करता हूँ, ठीक है, हाउसिंग की जो भी मतलब दलाल है होता है ना, उनमें काम करता हूँ। तो मेरे पास क्या है, डेटाज है। मैं क्या करता हूँ, जो भी मैंने पिछले साल अथवा मतलब आज से पुराने, जब भी कभी भी मैंने मतलब हाउस कभी भी बेचा होगा, तो मैं क्या करूँगा, उसके डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ,
मतलब मान लो कि इतना स्क्वायर फीट के लिए मैंने इतने में बेचा था, ठीक है। ऐसे करके मैंने रियल रियल टाइम की डेटाबेस में डेटा मैंने कलेक्ट किया, ठीक है। तो मेरे पास बंच ऑफ डेटा है, मतलब इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा। अब मेरे को अब यहाँ पे मेरे को क्या है, देखो एक्स भी गिवन है और एक्चुअल वाई भी गिवन है, ठीक है। ये होता है सुपरवाइज लर्निंग। इसमें क्या है कि तुमको वाई भी दे रखा होगा, मतलब जो भी पास्ट डेटा है उनकी वाई भी दे रखा होगा, ठीक है, एक्स और वाई। और इसकी बेसिस पे तुमको क्या करना है, ट्रेन करके फिर जो नए वाले एक्स होते हैं उसके लिए वाई प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। ये होता है लीनियर रिग्रेशन, अच्छा सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में हमेशा क्या होता है, एक्स और वाई दोनों गिवन होते हैं। समझ गए यहाँ पे, मतलब ये चीज समझ गए ना सब लोग। हेलो, ठीक है। अब जैसे उसमें देखो ये जो अनसुपरवाइज होता है, अनसुपरवाइज में क्या डिफरेंस होता है, इसमें तुमको वाई गिवन नहीं होगा। तुमको बस क्या होगा कि तुमको मैं क्या दूंगा, एक्स की ये पूरे जो एक्स एक्स एक्सिस है ना, मतलब जो भी डेटा है ना, जो भी मेरे पास कलेक्टेड डेटा, ये सारे मैं तुमको दे दूंगा, चलो ये ले लो। और तुमको अब यहाँ से क्या करना है, क्लासेस सेपरेट कराना है। पहले क्या था, हमको ऑलरेडी एक्स भी गिवन था, ऑलरेडी वाई भी गिवन था। बेस्ड ऑन दैट हम मशीन को ट्रेन करते थे और न्यू डेटा को, न्यू जो भी अनसीन डेटा है उस पर हम लगा के प्रेडिक्ट करते थे। अब हमको चैलेंज क्या आ गया कि मेरे पास वाई नहीं है, मेरे को ऑलरेडी ये नहीं पता है कि कौन से डेटा कौन से क्लास में होंगे, ये मेरे को अब नहीं पता पहले से। पर मेरे को बस दे दिया कि पॉइंट्स दे दिया, चलो ये सब ले लो और तुम क्या करो कि क्लासेस अपने आप सेपरेट करो। तो ये होता है मतलब के मीन क्लस्टरिंग, ठीक है। हमको क्या करना है, उस गिवन डेटा से एक ग्रुप बनाना है, मतलब बेस्ड ऑन क्या है, सिमिलैरिटी पैटर्न्स, ठीक है। डिस्टेंस के बेसिस पे करते हैं के मीन क्लस्टरिंग। अब मैं बताऊंगा ये कैसे होता है। जैसे मान लो सिमिलैरिटी पैटर्न्स ग्रुप ऑन, जैसे मान लो ये है, इसमें अगर ये तुम्हारे पास ये जो भी येलो कलर है, ये डेटाज मान लो, ठीक है। तो एक तो ग्रुप क्या है, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है, ठीक है। तो तुमको ये नहीं गिवन ना, मतलब कि ये डेटा कौन से क्लास में पड़ेगा, तुमको ये गिवन नहीं है। ये मशीन खुद को फाइंड करना है। तो ये क्या है कि पहले क्या करेगा कि ये पूरा एक क्या है, एक क्लास है। दूसरा क्या है, ये देखो ये जो पॉइंट और ये जो पॉइंट है, ये क्या है, आपस में सबसे पास है। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये आपस में सबसे पास है। तो ये क्या करेगा, इस ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप, दो क्लास बना देगा सेपरेट, ठीक है। तो इसने क्या प्रेडिक्ट किया, अच्छा ये एक ग्रुप पे आएगा, एक दूसरे ग्रुप पे आएगा, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी पैटर्न्स। मैंने बोल रखा है सिमिलैरिटी पैटर्न्स एंड द डिस्टेंस। अगर मेरे को मान लो कि मेरे को 3 ग्रुप्स निकालना है, तो के मीन क्या करेगा, इसमें से भी देखेगा कि ये अच्छा ये जो 4 पॉइंट है यहाँ पे जो येलो वाले, ये क्या है, पास है। और ये पास है, तो फिर मान लो इसको एक ग्रुप बना लेते हैं। और जो ये 4 हैं नीचे वाले, ये भी एक ग्रुप हो गए। और ये जो ऊपर ये जो बड़े हैं, ये भी एक ग्रुप हो गया। अगर मैंने बोला कि चलो मेरे को 3 ग्रुप मतलब फाइंड करो, तो के मीन क्या करेगा, ऐसे फाइंड करेगा बेस्ड ऑन क्या, सिमिलैरिटी पैटर्न्स एंड डिस्टेंस। एंड अगर 4 बोला तो क्या होगा, फिर से और स्मॉल डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेगा और उसको क्लस्टर करेगा, मतलब क्लासेस में डिवाइड करेगा, ठीक है। ये हो गया, समझ रहे हो ना, मतलब ओके, ठीक है। अब ये मैंने ऑलरेडी बता चुका कि हाउ डू वी नो द पॉइंट हैज द सेम ग्रुप एज अनदर पॉइंट, है ना, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी पैटर्न्स। जैसे ये जो 4 पॉइंट है, इसमें से और इसमें से डिसिमिलर, मतलब जो डिस्टेंस है बहुत दूर है, मतलब इन ये सब पॉइंट पास हैं और ये बहुत दूर है। तो ये क्या करे, के मीन इनको एक ग्रुप पे एक ग्रुप बना देगा और इसको अलग ग्रुप बना देगा। अगर तुमने बोला कि मेरे को 2 ग्रुप चाहिए इस डेटा में, तो ये ऐसा करेगा। अगर एक ही ग्रुप चाहिए तो फिर सारे को एक ही कंसिडर करेगा, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो ये के इक्वल टू 2 है, तो 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो इसी डेटा में देखो, ये मतलब ब्लू वाले और ऑरेंज वाले 2 इसने मतलब डिवाइड कर दिया कि ये इस क्लास में पढ़ेगा, ये दूसरी क्लास में पढ़ेगा। और के इक्वल टू 3 बोला तो यहाँ पे फिर से एक ग्रीन वाला ऐड हो गया कि ये वाला, ये ब्लू वाला, फिर ऑरेंज वाला, के इक्वल टू 4 ऐसे। तो ऐसे काम करेगा, जितनी तुम के की वैल्यू बढ़ाओगे मतलब वो वैसे ही, मतलब डिस्टेंस के बेसिस पे एंड सिमिलैरिटी पैटर्न के बेसिस पे क्लासेस को डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब यहाँ तक किसको समझ आया, मतलब कुछ डाउट है यहाँ तक अभी, मतलब एनडी होना है, मतलब बस रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है मेरे को। सर हम्म। सर ये एक्स और वाई रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन है। हाँ हाँ, कहाँ पे एक्सर भाई, कहाँ पे? जो सर आपने ग्राफ्स बताया ना अभी, हाँ, इसमें तो ये सर इसमें एक्स और वाई रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। ना ना ना, एक्सर वाई मतलब रिप्रेजेंट नहीं नहीं, ये तो बस तुमको दिखाने के लिए मैंने ये कर दिया कि एक्सर वाई ऐसे कर दिया। मतलब बेसिकली इसमें तुमको बस एक्स ही मतलब प्रोवाइड होगा, वाई नहीं होगा। बस बंच ऑफ डेटा प्रोवाइड होगा, ये मतलब हाई डायमेंशन में होगा।
ठीक है, एक्स की, और फिर तुमको वहाँ से ग्रुप करना है, क्लस्टर करना है, ठीक है। ओके। किसी को और कुछ मेन चीज सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज सुपरवाइज लर्निंग में समझ आ गया ना डिफरेंस क्या था? ओके, ठीक है, फिर मैं ठीक है, फिर एक साइकिट लर्न करके तुम्हारे पास लाइब्रेरीज होंगे पाइथन में। अब ये तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि तुमने कभी मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम किया नहीं है। पहले मैं सजेस्ट करूंगा साइकिट लर्न देखने से पहले एल्गोरिदम वगैरह देखना मशीन लर्निंग की, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीएम, के मीन क्लस्टरिंग, डिसीजन ट्री, ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट, ये सब देख लेना, एल्गोरिदम देख लेना, खुद से एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। एंड देन जब तुम उसमें परफेक्ट हो जाओगे तब जाके फिर क्या करना, साइकिट लर्न करना। साइकिट लर्न क्या है, उन्हीं चीज को मतलब सिंपल से मतलब ये सब डिस्कशन वगैरह ये हमको उतना वो नहीं है। ये मतलब बेसिकली अगर तुमको लीनियर रिग्रेशन चाहिए तो हम क्या करोगे, एसके लर्न से इंपोर्ट करोगे लीनियर रिग्रेशन, और तुम क्या करोगे उसको फिट करोगे, मतलब मॉडल पास करोगे कि कौन से हाइपर पैरामीटर वगैरह क्या ये सब लेना है, वो डिसाइड करोगे। एंड देन एक्स और वाई को डिवाइड करोगे, तुम जो भी तुमको डेटा प्रोवाइड होंगे ना उसको एक्स एंड वाई की एक मैट्रिक्स बनाओगे। एंड देन तुम मॉडल को फिट करोगे एक्स एंड वाई। सिंपल सा है, लिनियर रिग्रेशन में बहुत सारे मैथ होते हैं, तो ये 3-4 स्टेप्स में लिनियर रिग्रेशन को तुम ट्रेन कर सकते हो, गिवन डेटा से, है ना, जो भी तुमको डेटा दे रखे हैं उनको ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। ये यार मतलब मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि सीधा साइकिट लर्न देखो, टेंसर फ्लो, और टेंसर फ्लो ये जब डीप लर्निंग आएगा तब करना। तब अभी मैं बोलूंगा कि अगर तुमको मशीन लर्निंग में अभी कभी इंटरेस्ट है, जो भी अभी तक मैंने कराया है ना, इसमें कोई मतलब तुमको लगा कि अच्छा हाँ यार मशीन लर्निंग में वर्थ इट है टाइम इन्वेस्ट करना, तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि मशीन लर्निंग कोर्सेरा से एक एनजी एंड्रयू ने पढ़ा रखा है, वो कोर्स ले लेना, मतलब अभी है ना, देर नहीं हुआ है। एंड देन इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन द सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, एंड बेस्ड एंड देन द लीनियर रिग्रेशन, ऑल दोस थिंग, देन बता देना, ठीक है, मैं फॉर्म क्रिएट कर दूंगा। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो मशीन लर्निंग में और ये सब मैथमेटिक्स वगैरह में, और जो जो ट्रेनिंग वगैरह है, कैसे ट्रेन करना है ना, डेटास डेटास वगैरह, मतलब बोस्टन हाउस की मतलब हाउस प्रेडिक्शन की डेटास दे रखा है, तो उसको कैसे ट्रेन करना है, कब मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाना है, कब लीनियर रिग्रेशन लगाना है, कब एसपीएम लगाना है, इसको कैसे फाइंड करना है। अगर ये सब चीज़ें तुमको जानना है, मतलब है ना, लिटरली जानना है, मतलब सीखना है आगे कैसे। और रोबोटिक्स में तो एआई और एमएल तो बहुत यूज आते हैं, क्योंकि एआई रोबोटिक्स में क्यों यूज आते हैं कि एआई क्या है, मैंने बोल रखा था कि इट्स जस्ट मिमिकिंग द ह्यूमन एबिलिटीज, राइट। सो रोबोटिक्स में जो भी ह्यूमन करना चाहता है वो फास्ट एंड एफिशिएंट मैनर में हो जाए, तो हम क्या उसमें रोबोटिक्स में एआई यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी एप्लीकेशन तो तुमको पता ही होगा ना, मतलब अगर ड्रोन वगैरह हो गया इसमें भी वो करा सकते हैं, ऑटोनोमस सेल्फ ड्राइविंग कार, ये भी मतलब टेस्ला खुद बोल रहा है कि इट्स अ रोबोटिक्स कंपनी, है ना। तुम हाँ, फ्री कोर्स, ये मशीन लर्निंग फ्री है। मशीन लर्निंग का जो कोर्सेरा है ये फ्री है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। शायद इसका लैब असाइनमेंट के लिए चार्ज लगेंगे, बट व्हाट यू कैन डू इज, अगर पिक आईडी से एक्सेस करना है एक बार, है ना, पिक आईडी से कोर्सेरा के अकाउंट खोलना, एंड देन ट्राई टू लॉग इन एंड ट्राई टू इनरोल इन द कोर्स, ठीक है। पिक के आईडी से शायद फ्री है। एक कोर्स करने से पहले क्या, हाँ ठीक है, ओके फाइन। एक मतलब मशीन लर्निंग करने से पहले मैथ, लीनियर रिग्रेशन, लीनियर अलजेब्रा, एंड देन ये सब डेरिवेटिव्स वगैरह है ना, ये सब अच्छे से आ जाना चाहिए, ठीक है। 3 ब्लू 1 ब्राउन। ओके, मैं तुमको ना क्या करता हूँ, एक बार दिखाई लेता हूँ ना। 3 ब्लू 1, ठीक है। ये एक चैनल है, इसमें इसमें तुमको ना मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में अगर जाऊंगा मैं, ओके, कोविड प्रोबेबिलिटीज, हाँ, ये कैलकुलस भी करना और ये अलजेब्रा भी, दोनों, ठीक है, ये दोनों कर लेना, ठीक है। ये इससे मतलब मशीन लर्निंग के लिए ये कंपलसरी है। अगर तुमको लीनियर अलजेब्रा की कंसेप्ट नहीं पता होगा, अभी भी वेक्टर की और मैट्रिक्स में कंफ्यूज हो रहे होगे ना, है ना, तो फिर ये कर लेना, क्योंकि ये नहीं होगा तो फिर मैथ समझ नहीं आएगा अच्छे से मशीन लर्निंग की। और मशीन लर्निंग का मैथ है, मतलब तुम ज़्यादा वो साइकिट लाइन वाले ट्रेनिंग वाले में ज़्यादा वो मत करना। जब तुम मतलब सही हो जाओगे, मतलब सही हो जाएगा तुम्हारे कंसेप्ट, तब जाके साइकिट लर्न करना है, क्योंकि टाइम कम हो जाएगा, काम तो वो कर ही देगा ना। पर फिर भी वो तो समझना चाहिए कि साइकिट लर्न करके आ रहा है अंदर। अगर वही समझ नहीं आया तो फिर ट्रेन कैसे करोगे, मतलब इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, वो रटना पड़ेगा फिर को, वो जो सिंटैक्स होता है अगर तुमको पता चल जाएगा ना क्या है कैसे, तो सिंटैक्स भी आसानी से याद हो जाता है, ठीक है, दिमाग में आ जाता है सिंटैक्स वगैरह भी।
ठीक है, ये कर लेना थ्री थ्री ब्लू वन ब्राउन से। एंड देन मैंने बोला कि कोर्सेरा से है ना, सॉरी, ओके, मैंने क्या बोला, कोर्सेरा से एक मशीन लर्निंग का है, पेक आईडी से यूज करना। ये फ्री हो सकता है पेक आईडी से, अगर नहीं है तो क्या करना, इनरोल मत करना। वहां पे एक फाइनेंशियल ऐड करके एक ऑप्शन होगा, पहले उस फाइनेंशियल ऐड पे क्लिक करके उसमें जो भी फॉर्म्स है वो भर देना, बोल देना थर्ड वर्ल्ड कंट्री से वो पंगा चल रहा है, इकोनॉमिक पंगा चल रहा है, इधर उधर बोल देना। ठीक है, और फिर 19 दिन के बाद वो तुमको अप्रूव कर देंगे फ्री कोर्स। ठीक है, फ्री कोर्स हो जाएगा, तुम्हारा लैब भी फ्री होगा, सारा फ्री हो जाएगा, और सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा बाद में। देन ये खत्म कर लेना, इसमें एनजीओ ने सब मैथ कराया, वो मतलब अच्छे से कर लेना वो मैथ, है ना। एंड देन जब मशीन लर्निंग हो जाएगा, जब तुम डीप लर्निंग में आ जाओगे, तब क्या कर लेना, डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन, ये भी एनजीओ ने करा रखा है, ये भी कर लेना। एंड देन ये भी तुम उसे फाइनल से ऐड से कर सकते हो। एंड देन नहीं तो फिर को पेक आईडी से एक्सेस करके, पेक आईडी से फ्री होगा शायद, उससे कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों कर लेना, अगर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में जाना ये कर लेना। और नेक्स्ट थिंग, बुक में क्या करना, मशीन लर्निंग के लिए पैटर्न रिकॉग्निशन एंड मशीन लर्निंग बाय क्रिस्टोफर बिशॉप, ये बहुत ही सही बुक है। ठीक है, ये इसमें बहुत सही बुक है, और ये कर लेना। और डीप लर्निंग के लिए तो डीप लर्निंग विद पाइथन है। ठीक है, जब तुम मशीन लर्निंग कर जाओगे ना, तो डीप लर्निंग में फिर उतना मुश्किल नहीं आएगा, क्योंकि मशीन लर्निंग का एक पार्ट है, तो इसमें बस ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट अभी तक, कुछ भी मतलब, और एनी पीडीएफ, ओके, पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास है, मतलब पैटर्न रिकॉग्निशन के, ये मशीन लर्निंग का है, ये डीप लर्निंग का देखता हूँ मैं, मशीन लर्निंग का मेरे पास है, प्रोवाइड करता हूँ। एस बी, अच्छा, सुपरवाइज, एस बी एम की फुल फॉर्म सपोर्ट वेक्टर मशीन है, एस वी एम, हाँ, सपोर्ट वेक्टर मशीन, एस वी एम, मैंने शायद लिखा नहीं ना वहाँ पे, सपोर्ट वेक्टर मशीन है। ओके, और कुछ डाउट? चैट, कोई डाउट हो तो पूछ लेना यार। और मतलब ये बता देना कि ये वर्कशॉप कैसा था, मतलब तुम्हारे लिए कोई वर्थ इट था टाइम, मतलब कुछ सीखा, मतलब कुछ मशीन लर्निंग का कुछ आइडिया हुआ, क्या है मतलब, क्यों यूज़ कर रहे हैं, है ना, ट्रेडिशनल से ऐसे। ठीक है फिर, ओके सर, ग्रुप में एक बार रोड मैप बता देना आप अपने अच्छा, अच्छा, मेरे एक्सपीरियंस मतलब कैसे, कैसे आगे बढ़ना है ऐसे। भरत सिंह, एक बार रोड मैप मतलब कैसे आगे बढ़ना है, ये सब बोल रहे हो, मतलब कैसे स्टार्ट करना है मशीन लर्निंग सब। अच्छा, ठीक है, मतलब देखो, तुम कौन से ब्रांच से हो, भरत से, मतलब अनम्यूट करके बोल सकते हो यार। अच्छा, सी एस ए, ओके फाइन। तो डेटा एक्सट्रैक्शन एल्गोरिदम, मेन चीज़, ठीक है, डेटा एक्सट्रैक्शन एल्गोरिदम सबसे, मैं क्या बोलूँगा, डेटा एक्सट्रैक्शन एल्गोरिदम अगर उसमें कोर्स में है, तो उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ो। डेटा एक्सट्रैक्शन एल्गोरिदम इज अ बेस ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, मशीन लर्निंग का भी, डीप लर्निंग की, एआई, सबकी बेस क्या है, डेटा एक्सट्रैक्शन एल्गोरिदम। ये अच्छे से कर लेना, डेटा एक्सट्रैक्शन एल्गोरिदम अच्छे से कर लेना। एंड देन देखो, मैंने क्या गलती की थी, मैंने डेटा एक्सट्रैक्शन एल्गोरिदम उतना अच्छे से पढ़ा नहीं था, सीधा मशीन लर्निंग में जंप किया, तो वहाँ पे काफ़ी सारे एल्गोरिदम आ रहे हैं ना, तो फिर मैंने क्या, बैक ट्रैक किया, मतलब फिर से मैं वापस आया डेटा साइंस एल्गोरिदम, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। एंड देन आई मूव टू दी दिस थिंग, लीनियर अलजेब्रा एंड कैलकुलस, है ना, तो वो मैंने वीडियो सारे देखे, और उसकी बुक्स भी थे मेरे पास, आज मैंने पढ़ा था लीनियर अलजेब्रा के बुक्स, वो भी पढ़ा। एंड देन फिर मैं मशीन लर्निंग करा, वो एनजीओ एंट्री से साथ साथ में बुक भी पढ़ रहा था उसके, है ना। एंड देन उसके बाद फिर जब मैंने मशीन लर्निंग की, उसमें 1-2 महीने इन्वेस्ट किया फिर मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स वगैरह में। एंड देन मैं फिर क्या, डीप लर्निंग में मूव किया। एंड देन फिर मैं एआई में, अगर जब तुम एआई में आ जाओगे ना, तो मतलब आसानी से पता चल जाएगा, ये तो भाई डेटा एक्सट्रैक्शन एल्गोरिथम ही है, बस एडवांस लेवल पे है। ठीक है, मतलब ये है कि एआई इसे, मतलब जो भी एआई है ना, वो डेटा एक्सट्रैक्शन एल्गोरिथम ही है, मतलब उसमें काफ़ी सारे, मतलब जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, ए स्टार एल्गोरिथम, ये सब पढ़ना पड़ेगा। बस जब हम मशीन लर्निंग आता ना, तो ये मतलब सारे डेटा वो सबको ऑटोमेट करते फिर हम। ठीक है, और हाँ, प्रोबेबिलिटी भी अच्छे से पढ़ लेना, अगर प्रोबेबिलिटी की बुक मिल जाए तो सही है, क्योंकि सारे मशीन लर्निंग की जो भी एल्गोरिथम है, जो भी ऑप्टिमाइजेशन है, सारे प्रोबेबिलिटी में बेस्ट है। ओके,
ठीक है, फिर मैं वो ग्रुप पे वो फॉर्म वगैरह डालता हूँ, अगर इफ़ यू वांट टू नो मोर इन द मशीन लर्निंग, है ना, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, इसके भी एल्गोरिदम, तो बता देना वहाँ पे। तो जब भी मेरा टाइम मिल जाएगा, अभी तो प्लेसमेंट की साइकिल चल रही है तो थोड़ा बिजी हूँ, एंड देन उसके बाद फिर मैं करा दूंगा। ठीक है। ठीक है, फिर किसी को कोई डाउट है तो बोल देना, फिर मैं एंड करता हूँ यहीं पे। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, मैं ग्रुप पे सारा डाल दूंगा। ठीक है, जो भी रोड मैप है, पीडीएफ वगैरह सारा मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। ऑफिशियल ग्रुप पे सारे ऐड हो ना, मतलब वहीं पे डाल दूंगा। ठीक है मैं। चलो।